Now students, I am going to explain you about multiplication of integers. Beta ji, multiplication is a process of repeated addition. You know, you have learned in your small classes that multiplication is a process of repeated addition. Yes, so beta multiplication of integers is same as the multiplication of the नेचुरल नंबर्स. जैसे हम नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें इंटीजर्स के नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है. जैसे हम नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे 2 8 16. यस एंड नो. तो हमें वैसे ही इंटीजर्स के जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को. बट वी हैव टू केयरफुल अबाउट द साइन. ओके, हमें साइन के लिए केयरफुल रहना है. Because you already know the integers is the game of the sign. Okay, so when we are dealing with the sign, okay, positive sign, negative sign, then we have to be careful. Okay, and we have to follow some rules for what? For sign. हमें नंबर्स को तो बेटा हम सिंपली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं जैसे हम सीखते आए हैं. यस, बट when you are dealing with the sign, okay, then you have to follow some rules. So I am here to explain you first the rules of multiplication of integers. Okay, कि आप नंबर्स को तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लोगे लेकिन आप फाइनल प्रोडक्ट में साइन क्या दोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव. So for that you have to follow some rules. So here I am going to explain you the rules. So while listening, you be careful. Okay? Yes. So beta, what is the multiplying integers rules? Beta, when you multiply the two positive integers, you will get the answer positive. Clear? When you multiply the two negative integers, you get the answer positive. Clear? When you multiply the different sign, one positive, one negative, one negative, one positive, that means when you multiply the different sign integers, then answer will be negative. So what you have concluded with these rules? I am telling you. Same sign, positive sign. When we multiply the same sign, the answer will be positive, plus. Clear? When we multiply the different sign, the answer will be negative, minus. Again, I am repeating. What is the multiplying integer rules? When we multiply the what? When we multiply the same sign, that means 2 positive multiply या 2 negative, that means same sign multiply, same sign multiply, then the answer will be plus, positive. Clear? So when we multiply the different sign, one positive, one negative, then the answer will be negative, minus. That means same sign, positive sign, different sign, negative sign. In short, what is the multiplying integer rules? Same sign, positive sign, different sign, negative sign. Clear? Understood the rules? There are some more rules. So what you have understood from the multiplication of integers rules? Same sign, positive sign, different sign, negative sign. Yes, these two rules you understood. Next rule, 3 integers all with negative sign. अगर ये तो आपने 2 integers का किया, ठीक है. अगर 3 integers है और तीनों integers में नेगेटिव साइन है, यानी तीनों integers माइनस है, जैसे -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -6, मीन्स 3 इंटीजर्स है, ऑल 3 इंटीजर्स कैरी द नेगेटिव साइन और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन, माइनस. क्लियर दैट रूल कि 3 इंटीजर्स ऑल विथ नेगेटिव साइन को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में उसके कौन सी साइन लगेगी, नेगेटिव साइन. नेक्स्ट रूल,
If the number of negative integers in a product is even, then the product is a positive integer. अगर आप सोचिए इवन इंटीजर्स हो, दैट मीन्स 2 इंटीजर्स, 4 इंटीजर्स, 6 इंटीजर्स, 8 इंटीजर्स हो, ठीक है, आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 6 इंटीजर्स, 8 इंटीजर्स जो है उन सब में नेगेटिव साइन है, दे ऑल आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो जो उनका आंसर में जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। फिर से बता रही हूं, अगर आप प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, फिर से मैं पढ़ रही हूं, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज इवन देन द प्रोडक्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर मल्टीप्लाई में अगर आप इवन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, 10 इंटीजर्स है और उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और हर में नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, दैट मीन नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दे आर इन इवन, सो द आंसर विल कैरी द पॉजिटिव साइन। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन अ प्रोडक्ट इज ऑड देन द प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये तो मैंने आपको यही बता दिया था कि अगर 3 इंटीजर्स है, 3 इंटीजर्स है मतलब ऑड है, तो अगर ऑड इंटीजर्स है और वो अगर नेगेटिव साइन कैरी कर रहे हैं 3 के 3, तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। वैसे ही सेम यहां बोल रहे हैं, अगर आपके इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9 है, तो यानी ऑड है, और वो ऑड जो जितने भी इंटीजर्स है वो सारे में अगर नेगेटिव साइन है, तो उसके आंसर में कौन सी साइन आएगी, नेगेटिव साइन, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? अगर नेगेटिव इंटीजर्स सारे के सारे अगर नेगेटिव इंटीजर्स है और वो काउंट करें अगर वो इवन है, तो उसके आंसर में पॉजिटिव साइन आएगी। और अगर आपके सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स है और आप उनको काउंट करो वो ऑड है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर ऑड है, तो उसके आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स माइनस। अंडरस्टूड द मल्टीप्लीकेशन रूल? अगेन आई हैव टू रिपीट। फर्स्ट रूल, सेम साइन, पॉजिटिव साइन, मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम साइन को तो आंसर विल बी पॉजिटिव साइन, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिफरेंट साइन को तो आंसर विल बी नेगेटिव साइन। नेक्स्ट, अगर आपके जो नंबर ऑफ इंटीजर्स है वो अगर इवन है और वो सारे नंबर ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव है, तो आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, प्लस साइन आएगी आंसर में। और अगर आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड है और वो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, माइनस। क्लियर ऑल द रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स? ओके, with the help of the example it will be more clear. Multiplication of integers. First example, multiply 134 and 16. दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और दोनों इंटीजर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का रूल बोलता है सेम साइन पॉजिटिव साइन, नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आंसर में कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव, प्लस, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई -61 एंड 18। तो अब देखो मल्टीप्लाई करना, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन डिफरेंट साइन, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव। यस, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई का रूल बोलता है डिफरेंट साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आता है, फाइनल जो आपका आंसर होता है उसमें क्या आता है, नेगेटिव साइन, और हम नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मल्टीप्लाई -115 एंड -25। हमारा रूल क्या बोलता है, मल्टीप्लाई में अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा साइन और नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड? पॉजिटिव, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पॉजिटिव। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल, अगर आप देखो 3 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीनों के तीनों इंटीजर्स क्या है, माइनस है, दैट मीन्स ऑड है, नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है, 1 इंटीजर, 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या है, 3 मीन्स ऑड। तो ऑड नंबर्स को जब आप नेगेटिव, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। क्लियर? और नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इट्स क्लियर? सो आई वॉन्ट टू क्लियर दैट बेटा, पहले आप नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनके जो साइन है
उनको आप डील करोगे विद द हेल्प ऑफ द रूल्स, सेम साइन, पॉजिटिव साइन, डिफरेंट साइन, नेगेटिव साइन। और अगर आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स इवन है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट में जो साइन होगी वो होगी पॉजिटिव प्लस, और अगर आपके नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड है तो उसके फाइनल प्रोडक्ट में क्या साइन होगी, नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस। क्लियर? Okay, now in my next video you are going to learn division of integers.